Okay, is it clear? Everything is clear? Can you listen properly? You are hearing properly? Very good. Now I am discussing about the atomic number and mass number. See, yesterday I have sent you about the symbol of electron and charge and their masses of the particle, everything I sent. Now I am telling about what is the atomic number and mass number. Is there any similarity there, or what is the relationship between these two? See, atomic number. We have to denote by the atomic number by Z, which we study in standard 9 mathematics also. That is called the Julian. Julian means the any number, if you have to denote it, that is called the Z. Julian. And a mass number, because this is atomic mass number, so we have to write here A, atomic mass. ठीक है, क्लियर है? पहले हम लोग एटॉमिक नंबर को समझते हैं. एटॉमिक नंबर जेड से जिसको डिनोट करेंगे. ठीक है, आपको याद होगा एटॉमिक नंबर अगर सीधा डिफाइन अगर हम करें, बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो एटॉमिक नंबर है ना, वही ना एटॉमिक नंबर. यानी अगर सीधी भाषा में हम कहें कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी defined as the number of proton in the nucleus, because number of proton always situated in the nucleus, or you can say with the nucleus also, in the with the neutron, with neutron means atomic number of proton plus number of neutron equal to that is the nucleus actually. And both mixing, if you are adding the both, you will get the atomic mass. In the nucleus, of its atom or the number of extranuclear electrons in its atom. This is very simple. Atomic numbers means nothing, or you can say atomic number equal to, not Z you have to denote. Atomic number equal to Z equal to number of protons equal to number of electrons. Suppose if I see the carbon C6, atomic number of carbon 6, sodium atomic number 11, chlorine 17, like this. So what is this information says? This is the atomic number 6, 11 and 17, and this 6 state that 6 electrons are present, 6 electrons present in carbon, as well as 6 proton also present in carbon. This is not equal to 6 electrons is outermost orbit, 6 proton inside the orbit. That is the 12. 12 is the atomic mass. We will discuss now about the atomic mass. Sodium 11 means what?
Sodium atomic number means what? 11 is the 11 electron is there or 11 proton is there. Both are in equal amount. So 11 is the outermost orbit electron, number of electron, and inside the orbit number of proton. So 11 is both are the, दोनों एक ही चीज है. यानी 6 कार्बन अगर हम कहेंगे तो 6 कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये इसको 6 प्रोटॉन की भी संख्या को दिखा रही है और 6 इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या को दिखा रही है. दोनों कुछ इक्वल अमाउंट में. ठीक. इसके बाद आती है क्या इसका कुछ फीचर्स है क्या? ये जो एटॉमिक नंबर हम लोग बोलते हैं, इज देयर एनी फीचर? क्या इसका कुछ वैल्यू है? क्या इसका क्या मतलब हो सकता है? व्हाट इज फीचर्स? एटॉमिक नंबर इज always whole number because an atom always contain whole number of protons. Always whole number, पहली बात याद रखिएगा, always whole number है. कभी भी आप इसको 1/2, 3/4 इस तरह से नहीं डिनोट कर सकते. है ही नहीं. हमारे पास 1 से 118 तक एटॉमिक नंबर है. ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी आप समझ सकते हैं, यही है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही है और ये ऑलवेज होल नंबर में होगा. नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बिकॉज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यानी कि पहली बात है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का जो होगा, टू एलिमेंट्स का कभी भी एक ही, टू एलिमेंट्स का कभी भी वन एटॉमिक नंबर नहीं होगा. वन एटॉमिक नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या. ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज. याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन जब भी हम कराएंगे किसी भी चीज में, इसके एटॉमिक नंबर नहीं बदलेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होंगे. कहने का मतलब अगर H2 को अगर आप O2 से रिएक्ट करा रहे हैं तो H2 होगा, एटॉमिक नंबर नहीं बदलेंगे. आपको एटम को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा. नहीं तो यहाँ पे हो जाती ऑक्सीजन सिर्फ 8 और यहाँ 16 हो जाती एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 2 लगा के इसको इक्वल करना पड़ेगा. Each element has characteristics that can be used to identify the element. सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किसी भी, सपोज आ गया 20 एटॉमिक नंबर है. व्हाट इज 20 एटॉमिक नंबर? 20 एटॉमिक नंबर मींस ये कैल्शियम है. ये सब आपको याद करा दिया गया है, सब लिखवा भी दिया गया है. गोल्ड वगैरह सबका भी याद कराया हूं, सब आपकी जरूरत है. 79 सब 1 से 20 तक कॉमन याद रखना है एटॉमिक नंबर, और उसके बाद जो है उसके आगे की संख्याओं को याद रखना है. जैसे गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, जो रेगुलर यूजेस करें हम लोग पढ़ने के दौरान. अगली बात उसके बाद है, आज हमारा टॉपिक भी यही है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. व्हाट इज द मास नंबर? सी अबाउट द मास नंबर. दिस इज ऑल्सो ए वेरी close definition. Mass number means mass number. We have to denote by the A equal to number of proton plus number of neutron. ये दोनों मिल जाएंगे तो एटॉमिक मास बन जाए. और आप कह सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस. दैट्स ऑल. नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी आप कह सकते हैं, यानी जितने नाभिक में संख्या होगी ये दोनों का ही जोड़ है, और यही दोनों की इंफॉर्मेशन मास नंबर देती है. अब जैसे कि सोडियम, ठीक है, मान लेते हैं सोडियम में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है तो आपको इसका एटॉमिक नंबर मालूम है कि 11 है एटॉमिक नंबर, तो आप 11 और 12 को अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 23. ये हो जाएगी एटॉमिक मास. 23U
एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम, बिकॉज ये प्रोटॉन 11 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी तो है सेंटर में, और 11 प्लस 12 इक्वल टू 23 नंबर इसकी संख्या, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम एंड इज डिनोटेड बाय द A. यहां तक आपको क्या कोई डाउट है? एनी डाउट टिल नाउ?